All cockatiel lovers, today's video is very important for you because today I will explain you about my whole research behind cockatiels in just 5 to 8 sentences. I will try to complete that in a short package. So today's video is very important. Hi guys, you are watching my channel Ehsan Pets. Assalamu alaikum. मैं हूँ एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से. So I was talking about cockatiels, that why I chose cockatiel for breeding purpose, and why I give first priority to my cockatiels. I will tell you the reason behind that. Then I will explain you my whole research, because I've been doing this since last 10 years. I've been involved in breeding business since last 10 years, and I observed so many things. So little bit I want to tell you in starting that cockatiel is a social bird. Cockatiel is an intelligent bird. Cockatiel is a social bird, and cockatiel is an intelligent bird. It is more intellectual than the other parrots. If you are talking about budgies are also social, but budgies are not very much intelligent than cockatiels, because if you are comparing budgies with cockatiels, then budgies and cockatiels both are social bird, but there is a lot of difference in between both of the personalities, because cockatiels are very well observed, they are very intelligent, they look like something, if we meet new people, we think that maybe some of them are more intellectual than us, they are more witty than us. So I can also feel in the birds also. So I feel cockatiel that they are very observant. They also observe us. Sometimes I feel that I am observing my breeding cages, I am observing my breeding boxes, I am observing my cockatiels, that what they are eating or what they are drinking. But in the same way, they also observe me, they also observe you. This is the difference. This is the difference between the other birds and in the cockatiels. So I will start my research in Urdu language also, because there are so many people who are watching in Urdu. So it's very important to cover the whole audience. So guys, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि cockatiels मैंने क्यों चूज किए. मैं आपको वजह बताता हूँ. ये इतना जहीन परिंदा है कॉकटेल, जो है ना, इतना सेंसिटिव, इतना जहीन, इतना शातिर बर्ड है कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे. देखें, जब आप बजीज रखते हैं ना, बजीज होते हैं थोड़े से लल्लू. ठीक है, लल्लू से मुराद ये कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है. यानी कि केज के अंदर बैठा हुआ बजी, एक बजी जो केज के अंदर बैठा हुआ है, वो केज के बाहर बहुत कम ऑब्जर्व करता है. आप ये बात मेरे से लिखवा लें, जितने भी बर्ड्स हैं ना जो केज के अंदर होते हैं, जैसे बजीज हो गए या लवबर्ड हो गए, वो केज के बाहर बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं. वो केज के अंदर ही अपनी जो है ना ऑब्जर्वेशन जो है वो चलाते हैं. उनको नोटिस जो करते हैं वो केज के अंदर की चीजें करते हैं. बट कॉकटेल क्या करता है, कॉकटेल का आधे से ज्यादा ध्यान 50% केज के अंदर उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, और 50% इन जालियों के बाहर, यानी कि मेरी तरफ इसकी ऑब्जर्वेशन होती है. कॉकटेल क्या करते हैं कि ये बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको बहुत ज़्यादा मायने देते हैं. ये देखते हैं बाहर क्या हो रहा है. अब ये देख रहे हैं आप, ये तो मेरे खैर हैंड टेम है, बट ये क्या करते हैं कि ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बंदा हमारा ओनर है वो हमें ठीक से ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारी जगह तो नहीं चेंज कर दी. अब देखें, यही वजह है कि कॉकटेल की जब आप जगह चेंज कर देते हैं ना, या उसका पिंजरा चेंज कर देते हैं, आप उसकी शक्ल देखिएगा कभी बर्ड की. जब आप कॉकटेल का पिंजरा चेंज कर देते हैं या किसी का पेयर आप उठा के तोड़ देते हैं अगर, तो आप इनका बिहेवियर चेक कीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई ये भी इंसान है. तो ये बेसिकली ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, इंसानों की तरह जो है वो बिहेव करते हैं. और यही वजह होती है कि ये किसी भी एक चीज़ को 1 महीना लगातार नहीं खा सकते. अब मिसाल के तौर पे आप इनको गंदम भिगो के दे रहे हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं गंदम. मैं खुद भी देता हूँ, अभी भी दे रहा हूँ मैं. बट क्या होता है कि 1 महीने बाद ये वो खाना कम कर देते हैं. क्यों खाना कम कर देते हैं? क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, इनको पता होता है कि ये चीज़ हम बहुत टाइम से खा रहे हैं, इनका दिल भर जाता है, जैसे हमारा दिल भर जाता है ना, हम सब्जी खाते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको भिंडी दूं, बार बार देता रहूं, एक वक्त ऐसा आएगा आप बोलेंगे यार बिरयानी भी बना के दो. तो इसी तरह ये बिहेव करते हैं. बजीज में ऐसा कुछ भी नहीं है. बजीज को आप बाजरा देंगे, वो बाजरा खाना शुरू कर देंगे. बजीज को आप जो चीज़ देते रहेंगे वो खाते रहेंगे. उसमें बजीज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा सोचता नहीं है बजीज. इसीलिए जितने भी नए लोग जो बर्ड्स के हवाले से आते हैं मेरे पास कि यार हम बर्ड्स रखना चाह रहे हैं, ब्रीडिंग करवाना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आप न्यू हैं इस बिज़नेस में या आपको पता नहीं है, पहले अगर आपने नहीं रखे, तो आप बजीज से स्टार्ट करें.
आप लव बर्ड्स रख सकते हैं, आप बजीज रख सकते हैं, जो कॉमन म्यूटेशंस होती हैं, फिंचेस आप रख सकते हैं। अब आप देखें फिंचेस क्या करती हैं। फिंचेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसका नेस्ट तोड़ देते हैं, वो दोबारा बना लेगी, उसी के 5 मिनट बाद वो दोबारा बनाना शुरू कर देगी। अगर आप फिंचेस के एग्स निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट डे आप देखेंगे मॉर्निंग में क्रॉसिंग करवा रही होगी नए एग्स देने के लिए, और 4-5 दिन बाद वो नए एग्स दे देगी, ठीक है। अगर आप फिंच के बच्चे निकाल लेंगे तो वो दोबारा एग ले कर देगी। अगर आप फिंच का मेल चेंज कर देंगे ना, दूसरा मेल उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगी कि वो दूसरे मेल को एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि इनके पेयर भी आप तोड़ सकते हैं। उनको उनका दिमाग है ही नहीं ना बेसिकली, उनको वो बने ही ब्रीडिंग के लिए, उनको सिर्फ एक चीज पता है, ब्रीडिंग बस। फिंचेस क्या करती हैं, ब्रीडिंग करती रहती हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल बर्ड है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नया बंदा है ना उसको ईजी रहता है वो रखने में। इसी तरह उसके बाद बजीज का नंबर आता है। बजीज आप रखते हैं, लाते हैं। बजीज का ऐसा है कि आपने अगर दोनों एडल्ट हैं, अगर आपने छोड़ दिए तो 4-5 दिन में आपको नजर आएगा कि वो एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बना रहे हैं, और महीने के अंदर अंदर वो जो है ब्रीडिंग बॉक्स को कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, उसको अंदर जाना शुरू कर देंगे उसके अंदर। तो उनका अगर आप पेयर तोड़ देते हैं, कोई दूसरा पेयर लगा देते हैं, या कुछ उनका केज चेंज कर देते हैं, तो बजीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बजीज है ना यहाँ से उठा के आप इधर डाल दें, इस वाले केज में डाल दें, तो वो उनको फर्क ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसीलिए काफी ज्यादा बजीज जो हैं वो हंडिया समेत, मटकी समेत या बॉक्सेस समेत लोग घर ले आते हैं, बच्चों समेत, और वो घर लाने के बाद भी उनको फीड करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कॉकटेल की, तो कॉकटेल में 50-50% चांस होता है, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये फील करते हैं हर चीज को, उनको पता चल जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या हमारी जगह चेंज हो गई है, या हमारा ओनर चेंज हो गया है। इसीलिए जब भी आप कॉकटेल किसी दूसरी जगह से लेकर आते हैं, तो शुरू के 3 से 4 दिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, चेक करने के लिए कि भाई जो कॉकटेल हम लेकर आए हैं वो हमारे पास आके खाना खा भी रहा है कि नहीं खा रहा, और या फिर अब इसकी एक्टिविटी प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही। ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। मिसाल ले लें, आप कॉकटेल कहीं से लेकर आए और वो नाराज हो गया, वो परेशान हो गया, क्योंकि वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है क्या हो रहा है। तो अगर वो परेशान हो गए और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, और आप फेल हो गए उनको खाना खिलाने में, या नई नई चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे, अगर आप कहीं से आप लेकर आते हैं ना, तो आपको नई नई चीज़ें डालनी पड़ती है, ताकि भाई खुदा का वास्ता है नीचे उतर और खा ले, हमारी जान जो है ना अजाब से निकाल। तो जब तक वो खाता नहीं है ना, परेशानी रहती है। उसकी वजह ये है कि अगर ये खाना पीना छोड़ दें तो हार्डली ये तुम समझें कि 12 से 15 घंटे में कमज़ोर हो जाते हैं। इनकी पूरी चेस्ट बोन निकल आती है बाहर, क्योंकि ये ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं। अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आप इनकी जगह चेंज करें, या आप इनके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे ये कुछ और खाते थे, अब आप यहाँ ले आए, अब आप कुछ और खाने को दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो जब भी कॉकटेल किसी के पास से लेकर आए ना, उसका दाना देख लें कि वो क्या खिलाता है उसको, या उससे थोड़ा सा बोरो कर लें, उसको पैसे दे दें कि यार अपना ही वाला दाना जो आप इनको देते हो थोड़ी देर के लिए दे दो मुझे, 1-2 दिन मैं उससे काम चला लूँगा। अब उससे बेसिकली होता ये है कि इनको फैमिलियर फील होता है। फिर अगर आप सुबह के टाइम पे, जब आप जिस दिन आप लेकर आए अगले दिन सुबह उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, उस बंदे से पूछ लें तुम क्या देते थे, वो बताएगा मैं ये देता था, तो वो आप दें। कॉकटेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कॉकटेल रखने के लिए आपका अपना इंटेलिजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें ये बंदा बता रहा है, तो कितना मुश्किल बर्ड होगा ये रखना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप जान जाते हैं ना, कॉकटेल रखते हैं, अब मुझे पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या इनसे कब क्या करवाना है। अब मैं ब्लाइंडली ये सब चीज़ें करता हूँ। मुझे ब्लाइंडली यानी कि मैं इनको हैंडल करता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आदी हो चुका हूँ। और कॉकटेल से ज़्यादा बिजनेस पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कॉकटेल से बड़ा बिजनेस कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बर्ड है जो हर कंट्री में रखा जाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब जैसे अमेरिका में फिंचेस नहीं रखी जाती। अमेरिकन जो हैं वो फिंचेस को प्रायोरिटी नहीं देते। अमेरिका में या तो कैनरी बर्ड होता है, कैनरी बर्ड जिसको हम कहते हैं, सिंगिंग बर्ड जो होता है, या फिर एक और होता है साइबेरियन फिंच होती है, एक साइबेरियन फिंच कहते हैं या क्या कहते हैं उसको, वो रखते हैं वो। और बजीज रखते हैं, कॉकटेल्स रखते हैं, बट वो फिंचेस नहीं रखते। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बजीज नहीं रखे जाते, कॉकटेल्स रखे जाते हैं। तो लेकिन कॉकटेल वाहिद ऐसा बर्ड है जो कि हर कंट्री में पसंद किया जाता है, रखा जाता है। और ये जो है बहुत देखें, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले और इंटेलिजेंट होते हैं। तो इनके साथ थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है आपको, ताकि आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम ना आए, या वो ख़राब ना हो, खा पी सही से रहा हो, और आपको नुकसान ना हो जाए। अब जैसे सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, जो कॉकटेल ब्रीडर्स हैं या कॉकटेल से ब्रीड करवाते हैं,
उन लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हमारे जो कॉकटेल्स हैं ना वो बच्चों को फीड ठीक से नहीं करवा रहे, या बच्चों को हम लोग सॉफ्ट फूड भी दे रहे हैं उसके बावजूद जो है वो बच्चों को ठीक से फीड नहीं करवा रहे। उसका बेसिकली रीज़न पता है क्या होता है? आप एक काम किया करें, सॉफ्ट फूड जो है ना, गंदम अगर आपने भिगो के रखी हुई है, गंदम अगर आप यूज़ करते हैं तो आप खिलाते रहें, जब तक वो खा रहा है खिलाते रहें और नज़र रखें कि बच्चों को फीड करवा रहा है नहीं करवा रहा। अब जाहिर सी बात है कि 20 दिन लगातार गंदम खाने के बाद कॉकटेल क्या करते हैं कि गंदम खाना कम कर देते हैं, बच्चों को फीड करवाना भी कम कर देते हैं, बेसिकली बोर हो जाते हैं। तो उस टाइम आप क्या करें, जब आपको लगे कि यार बच्चों को ये कम खिला रहे हैं, गंदम देना आप बंद कर दें, फिर आप काले चने भिगो के जो आप सॉफ्ट फूड के तौर पे देते हैं आप वो देना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉकटेल्स हैं वो उसको दोबारा से बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देंगे, खुद भी खाएंगे प्रॉपर तरीके से और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका ये होता है कि आपके पास अगर आप देखते हैं कि भाई हम लोग जो है वो काले चने भी दे रहे हैं, गंदम भी दे रहे हैं, फिर भी वो फीड नहीं करवा रहे कॉकटेल्स प्रॉपरली, काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर एक अलग से दाना बनवाया जाता है जो कि मजबूरन बनवाया जाता है। पहले मैं मना किया करता था बट कॉकटेल वो चीज़ खाता बहुत शौक से है। तो आप क्या करेंगे, सूरजमुखी के बीज, जई और उसके अलावा खुर्तम नाम का बीज आता है, खुर्तम नाम का बीज आता है, ये सारे बीज, और इसमें ईरानी बीज अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो हमारे पास सूरजमुखी का बीज होता है ना, ईरानी बीज उसी की तरह का होता है बट उससे साइज़ में डबल होता है और उसके ऊपर ज़ेब्रा लाइंस बनी होती हैं, वो आप ला के डालें, क्योंकि कॉकटेल्स बहुत शौक से खाता है सूरजमुखी का बीज। मना मैं इसलिए करता था क्योंकि ये जो फीड है ये रिंग नेक की फीड है, बट क्या होता है जब कॉकटेल बच्चों को फीड नहीं करवाता या कुछ भी नहीं खा रहा होता तो ये वो वाहिद चीज़ है कि कॉकटेल मर भी रहा होगा ना, खाने ज़रूर आएगा। तो ये फीड आप क्या करें, 3-3 मुट्ठी जो है ना फेंक दिया करें ट्रे के ऊपर सुबह के टाइम पे। जिसने 3 बच्चे दिए हैं, 4-5 बच्चे दिए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, ब्रीडर पेयर को, ताकि बच्चों को फीड करवाने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चे जो है बचा लेता हूँ। और लोगों के पास, जिन जिन लोगों को मैंने ये तरीका बताया, उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि वाकई यार इससे सर्वाइव कर रहे हैं बच्चे ना, बहुत अच्छे मतलब ब्रीडिंग कर रहे हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।